Namaskar, Shubho Sandhya. Good evening to one and all present here. I, Devanshu Chakravarti, on behalf of Center for Studies in Human Development, Assam University, welcome you all in the seventh guest lecture to be delivered by one of the renowned social worker and organizer, Adaraniyo Dattatreya Hosable, Sarkari Vivaho Rashtriya Swayamsevak Sangh. This lecture is actually a part of year-long 150 years lecture series on foundation of Indian culture for the purpose of reawakening youth toward India's cultural ideas and ideals. The program is actually commenced on 24th November 2020 and it will continue till December 2021. And we have already completed 59th lecture on 7th August, and we are really fortunate that Sri Diganto Biswa Sharma, a renowned translator and author, has extended all his support in organizing this mega event. With this, may I now invite Srimati Katamrita Bhattacharya, Sampark Pramukh, Vivekananda Kendra Borak Vibhag, to initiate the program with Mangala Acharan. Madam, please. Namaskar to all. We will start with Shri Omkar Prarthana. सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधैतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Namaskar, Shubho Sandhya. Good evening to one and all present here. I, Devanshu Chakravarti, on behalf of Center for Studies in Human Development, Assam University, welcome you all in the seventh guest lecture to be delivered by one of the renowned social worker and organizer, Adaraniyo Dattatreya Hosable, Sarkari Vivaho Rashtriya Swayamsevak Sangh. This lecture is actually a part of year-long 150 years lecture series on foundation of Indian culture for the purpose of reawakening youth toward India's cultural ideas and ideals. The program is actually commenced. Namaskar, Shubho Sandhya. Good evening to one and all present here. I, Devanshu Chakravarti, on behalf of Center for Studies in Human Development, Assam University, welcome you all in the seventh guest lecture to be delivered by one of the renowned social worker and organizer, Adaraniyo Dattatreya Hosable, Sarkari Vivaho Rashtriya Swayamsevak Sangh. This lecture is actually a part of year-long 150 years lecture series on foundation of Indian culture for the purpose of reawakening youth toward India's cultural ideas and ideals. The program is actually commenced on 24th November 2020 and it will continue till December 2021. And we have already completed 59th lecture on 7th August, and we are really fortunate that Sri Diganto Biswa Sharma, a renowned translator and author, has extended all his support in organizing this mega event. With this, may I now invite Srimati Katamrita Bhattacharya, Sampark Pramukh, Vivekananda Kendra Borak Vibhag, to initiate the program with Mangala Acharan. Madam, please. Namaskar to all. We will start with Shri Omkar Prarthana. सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह
वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधैतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। Dhanyavad. May I now request Professor Niranjan Roy, coordinator of this year-long program, to deliver welcome address and also to introduce our respected speaker. Sir, please. Namo Namah. It is my proud privilege to welcome Param Adaraniya Dattatreya Huzbulji, all our registered participants for this year-long program, and respected guest participants from different organizations attending through Google Meet, YouTube, and Facebook platforms in this 7th guest lecture organized as part of year-long 150 hours lecture series organized on the foundations of Indian culture, organized by the Center for Studies in Human Development of Assam University. We are really fortunate that the 7th guest lecture will be delivered by none other than Param Adaraniya Dattatreya ji, despite his all busy commitments of nation building activities. Dear friends, we have entered a very interesting phase of transformation of our motherland, Bharat. An opportunity to regain and resurgence of our past glory and to become Vishwaguru once again. We must rediscover our motherland, Bharat, again. This opportunity has come to us after hundreds of years of exploitation by different rulers and our great presence to tolerate all these during all these hundreds of years. We are dreaming to transform India into Nai Bharat. And at this point in time, 55% of our population today is less than 27 years old, less than 27 years of old. And it is estimated that this window of demographic dividend and this opportunity will be available to us till next 3 to 4 decades. As India is on the point of major change, we must ensure restoring the credibility of the indigenous man-making education system, emphasizing on Indian values, traditions, Indian ethos, and culture. The Indian higher education is one of the highest and one of the largest in the world today. We need inspiration from our philosophers and the philosophies of great saints like Vivekananda, Sri Aurobindo, Deen Dayal Upadhyay, and all other rishis for empowering and to build capacity of our younger generations. They are the asset of future India. With this objective, the Center for Studies in Human Development of Assam University has organized this year-long 150 hours lecture series, and which started on 5th of December 2020 and will continue till December 2021. And the main objective is to reawakening the youth, our youth, towards India's cultural ideas and ideals. This is a small effort by the Center of Assam University in this Mahayagya. The main sutradhar of this program, entire exercise, is Sri Diganta Vishwa Sharma. Diganta Vishwa Sharma is an ardent devotee of Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, and Sri Aurobindo's philosophy. Diganta ji is having a very interesting life profile. He was a class 1 officer in the government of Assam as district transport officer. But with the spiritual attraction, he resigned on 12 January 2012 at the age of only 39 years, leaving aside uncertainty in future life to pursue a different life
in the light of thoughts of Sri Aurobindo, Sri Ramakrishna, and Swami Vivekananda. And he has been trying to integrate their philosophies for the last more than 1 decade. Recently, he has translated and published The Foundations of Indian Culture, The Ideal of Karmayogi, The Renaissance of India, Kara Kahini, Gitar Bhumika, originally authored by Sri Aurobindo, and Sri Manoj Dasgupta Samaprasad Mukherjee, A Pure and Manly Life into Assamese Language. At present, his areas of studies include spirituality, yoga, Indian culture, nationalism, and Indian pedagogy. Digantoji will deliver 100 lectures in this year-long program and already completed 59 such lectures. We are organizing 1 guest lecture every month, and today is really a very happy moment for all of us. The 7th lecture is a special for all of us, and this lecture will be delivered by none other than Sri Dattatreya Bhojbole ji. मैं अति सौभाग्यवान हूं, मुझे ऐसे एक व्यक्तित्व का परिचय कराने का अवसर मिला जिन्होंने अति कम आयु में राष्ट्र के नाम पर अपने को समर्पण कर दिया। परम आदरणीय दत्तात्रेय जी का जन्म 1954 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुआ। आपने 1978 में बेंगलोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की है। आप 1968 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने एवं 1972 में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। आपने 1978 में 78 से ही संघ के प्रचारक के नाते सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। आपने अपने सांगठनिक जीवन का लंबा समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहे। आप विद्यार्थी परिषद में विविध दायित्व का निर्वहन करते हुए 1992 से 2003 तक अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। तत्पश्चात आपने 2003 से 2009 तक संघ के अखिल भारतीय सहबौद्धिक प्रमुख एवं 2009 से 2020 तक सह सरकार्यवाह का दायित्व निभाया। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह है। आप युवावस्था से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा हेतु चल रहे आंदोलन में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही। इसी कारण आपको मिसा के तहत 14 महीना से अधिक समय तक जेलबंदी रहना पड़ा। विद्यार्थी परिषद में रहते समय शिक्षा जगत से जुड़े अधिकांश आंदोलन में आपकी मुख्य भूमिका रही। आपने विश्व के युवाओं के जोड़ने के दृष्टि से विश्व विद्यार्थी युवा संगठन यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ का गठन किया एवं लगभग 20 वर्ष तक उसके संस्थापक महासचिव भी रहे। उसी दौरान आपने विश्व के अनेक देशों में संगठन के कार्य हेतु यात्रा करना प्रारंभ किया, जिससे विश्व भर की विद्यार्थी गतिविधियों से आपका संबंध स्थापित हुआ। आपने अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस एवं अनेक यूरोपीय देशों की व्यापक यात्रा की एवं वहां पर रहने वाले लोगों में भारत एवं हिंदुत्व के प्रति उत्सुकता एवं सहृदयता जगाने का कार्य किया। आपके योगदान के कारण ही वैश्विक समुदाय में भारत एवं भारतीय विचार के प्रति सम्मान बढ़ा है। आप सुविख्यात चिंतक, विचारक एवं अनेक विषयों में अध्ययन की है। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, मराठी आदि अनेक भाषाओं के जानकार है। आप लोकप्रिय कन्नड़ पत्रिका
ओसिमा के संस्थापक संपादक भी रह चुके हैं। मैं अध्यापक निरंजन राय आज इस अवसर पर परम आदरणीय दत्तात्रेय जी का नमन करता हूं। नमस्कार सर। कल्चर द फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी, इस विषय पर आदरणीय दत्तात्रेय जी का बहुमूल्य व्याख्यान सुनने से पहले मैं माननीय दिगंत जी को अनुरोध करता हूं उनका संक्षिप्त भाषण रखे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। Namaskar, Param Adaraniya Sri Dattatreya ji, our respected Professor Gopal Mishra, Professor Z. Ram, Professor Niranjan Roy, Dr. Debotro Chakraborty, the Chairman, the Secretary, the Coordinator, and the Treasurer, respectively, of the organizing committee of this year-long lecture series, esteemed registered participants, and invited guests. At the very outset, let me heartily welcome Adaraniya Dattatreya ji, Sarakajyava, Rashtriya Swayamsevak Sangha, to this ongoing lecture series on Indian culture being organized by Center for Studies in Human Development, Assam University, Silchar, as the 7th esteemed guest speaker of this year-long academic lecture series, with a joy unspeakable in my whole being. It is indeed a great privilege and a rare fortune and an occasion of delight for me to have the opportunity to welcome such a great soul like Adaraniya Dattatreya ji, who has dedicated his whole life at the lotus feet of the Mother India and has been a full-time Karyakarta of Rashtriya Swayamsevak Sangha for the cause of our dearest motherland since his early youth. Not only is he a prolific speaker and orator and a polyglot, he is a voracious and versatile reader too, in the true sense of the word. Not only are his speeches informative and thoroughly thought-provoking, they are full of insights and wisdoms and knowledge. Adaraniya Dattatreya's heart-touching and penetrating speeches always enlighten and inspire thousands of Karyakartas across the length and breadth of the country. I feel indeed happy and delighted even today to be one amongst those thousands of fortunate ABVP Karyakartas throughout the country during mid-80s and early 90s to have received his guidance and mental proximity. This proximity with Mananiya Dattatreya ji had not only encouraged and inspired us, he could even, with his rare quality and large heart of reaching and connecting to the grassroots Karyakartas, effectively shape the courses of our adolescence and early youth. I have no hesitation to declare that what we are today is precisely because of the guidances that we received from few such towering personalities with large hearts and their influences upon our soul and mind at the formative stages of our life. Adaraniya Dattatreya ji is certainly one of those few great souls. He even heartily congratulated us for organizing this lecture series and sent his best wishes as early as in the month of December 2020. We are happy and delighted to have him today amongst us as our 7th esteemed guest speaker. We express our sincere thanks and gratitude to him from the core of our heart for accepting our invitation despite his extremely busy engagement as the Sarakaryava of Rashtriya Swayamsevak Sangha. I have been always saying that Assam has been incessantly singing, as we find in Bhagavata Purana, the glories of Bharatabarsha since millenniums. Almost all the Vaishnavite poets and kings from this part of Bharatabarsha belonging to the 15th century Assam, from Mahapurush Srimanta Shankardev, Madhavdev, Ananta Kandali, Bhattadev, Aniruddhadev, Madhav Kandali, to Haridas, Abhisekhar Ratnakar Kandali, Gopal Saran Mishra, Ram Saraswati, Ram Saran Thakur, Bhushan Dees, Ramananda Dees, and many more have been loudly singing the glories of Bharatabarsha in their creative as well as devotional expressions. It is a rare yet really remarkable creative tradition singing the glories of Bharatabarsha in spiritual, religious
and devotional creative expression that took place in this part of our motherland as early as in 15th century. But what then is India? If there is any land on this earth that can claim to be the blessed Punyabhumi, the land of introspection and of spirituality, it is India, says mighty Vivekananda. Sri Aurobindo says, our country is God, the mother. Speak not evil of her unless thou canst do it with love and tenderness. India is not the earth, rivers and mountains of this land. Neither is it a collective name for the inhabitants of this country. India is a living being, as much living as a Shiva. India is a goddess, as Shiva is a god. If she likes, she can manifest in human form, says the mother, the spiritual collaborator of Sri Aurobindo, whom we adore as the incarnation of the Supreme Divine Mother. Sri Aurobindo says, Mother India is not a piece of art. She is a power, a godhead. For all nations have such a Devi supporting their separate existence and keeping it in being. While the mother says, the soul of India is one and indivisible. India is conscious of her mission in the world. She is waiting for the exterior means of manifestation. It is therefore with a view to facilitate the evolution of the means of manifestation, this one-year-long lecture series is being conceived, conceptualized, and carried on by the Center for Studies in Human Development, Assam University, Silchar, on the foundations of Indian culture. For Sri Aurobindo has outlined following threefold national agenda for India. He says, the recovery of the whole spiritual knowledge and experience in all its splendor, depth and fullness is its first, most essential works. Deploying of this spirituality into new forms of philosophy, literature, art, science and critical knowledge is the second. An original dealing with modern problems in the light of the Indian spirit and endeavor to formulate a greater synthesis of spiritual society is the third and most difficult. Its success on these three lines will be the measure of its help to the future of humanity. This year-long academic lecture series on India and its cultural greatness is perhaps the first of its kind in the long academic history of Indian universities during the period of almost last 200 years towards achieving the national objectives as stated and outlined and explained by Maharishi Sri Aurobindo. It needs mentioning here that the Krishnakanta Hendrik State Open University from Assam have already notified to hold almost a similar academic lecture series, while IIT Guwahati has accepted my proposal to hold a smaller version of this lecture series, hopefully with effect from the month of September 2021. We may therefore legitimately feel proud of Assam, for like those great souls of 15th century Assam, modern Assam too has been initiating once again few but laudable and bold academic programs for reawakening the nation towards its glorious and profound cultural ideas and ideals in a systematic manner. This academic lecture series on Indian culture, as has already been intimated, is based entirely on Sri Aurobindo's masterly work on Indian culture entitled the Renaissance in India and other essays on Indian culture. My personal involvement with this program as the facilitator and the key speaker is, in fact, part of my personal sadhana and offering at the lotus feet of Sri Aurobindo in his auspicious 150th birth anniversary being celebrated across the globe. We do not perceive Indian culture only as a cultural system, but as an immense effort of the human spirit, not for mere repetition of the old forms meaninglessly, but as an effort towards evolution of higher and deeper consciousness for realizing the yet unrealized future ideals of the race. For, let me quote Sri Aurobindo here once again, Indian culture recognizes the spirit as the truth of our being and our life as a growth and evolution of the spirit, unquote. Sri Aurobindo unambiguously declared, the modern world is still mainly European.
a world dominated by the European mind and Western civilization. We claim to set right this undue preponderance, to reassert the Asiatic and, for ourselves, the Indian mind, and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. It is therefore not mere repetition of old forms, but a continual expansion of our ideals with new creation and new forms of the ancient Indian Sadharma, along with creative assimilation of modern thought for realizing the yet unrealized future ideals of mankind is then our goal and driving aspiration and inspiration. I am perfectly aware of my limitation and shortcomings. Neither am I a scholar, nor do I possess any original scholarship. My Shraddha and a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Divine Mother is my sole source of strength and audacity. Rest entirely belong to and depend on her. Let me now wind up here, as we all are eagerly waiting for Adaraniya Dattatreyaji to enlighten and inspire us with his radiant words of wisdom on culture, the foundational aspect of our nation and nationalism. Before I finally conclude, let me quote two bold and mighty utterances. The only condition of national life, of awakened and vigorous national life, is the conquest of the world by Indian thought. Up, India, and conquer the world with your spirituality, says Vivekananda long ago, while Sri Aurobindo concludes his work on Indian culture with the following sentence: India of the ages is not dead, nor has she spoken her last creative word. She lives and has still something to do for herself and the human people, unquote. I now cordially invite Adaraniya Dattatreyaji to deliver his speech and illumine us. With my heartfelt thanks and gratitude to all of you, I finally conclude here. यह हमारा विनम्र निवेदन है। हम आग्रह और आशा करते हैं माननीय दत्तात्रेय जी हिंदी में हमारी मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार to Sri Dr. Niranjan Rai, नमस्ते। दिगंत विश्व शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में आज उपस्थित आभासी पद्धति से जुड़े हुए सभी परिचित अपरिचित बहनों और भाइयों। दिगंतदा, my voice is audible? Oh, Yes. audible. Perfectly audible. Perfectly. Yes, sir. बहुत ही आनंद का विषय है कि कुछ समय पहले इस कोविड महामारी के संकट काल में हमारे पुराने मित्र दिगंत विश्व शर्मा जी ने एक मेल भेजा कुछ समय पूर्व, और उन्होंने बात की कि ऐसे और औरोबिंदो के फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके आधार पर पूरे एक वर्ष 100 से अधिक का लेक्चर करने के एक पाठ्यक्रम सिलेबस उन्होंने बनाए, और सिलचर विश्वविद्यालय ने, असम विश्वविद्यालय सिलचर ने इसको चलाने की स्वीकृति दी। इसलिए दिगंत विश्व शर्मा जी को और प्रोफेसर निरंजन राय और सिलचर के असम विश्वविद्यालय, इन सबको मैं भारत के समाज और भारत के लोगों की ओर से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ऐसे एक एकेडमिक विषय पर जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण आयाम पर प्रकाश डालने के और लोगों के प्रबोधन करने के लिए ऐसे एक उपक्रम को प्रारंभ करना ही अत्यंत हर्ष और आनंद के विषय है। यह प्रशंसनीय और सराहनीय की बात है।
मित्रों, संस्कृति के संबंध में भारत में प्राचीन काल से इस विषय के बारे में चिंतन प्रयोग जीवन में लाने के प्रयत्न लगातार हुआ है। वैसे हम कल्चर और संस्कृति इसको समानार्थी रूप से बात करते हैं। जैसे रिलीजन धर्म ये समान नहीं है, धर्म धर्म है, रिलीजन रिलीजन है। ऐसे ही नेशन और राष्ट्र को हम समान मानते हैं, ये अपने अनुकूलता के लिए मान रहे हैं। यद्यपि नेशन के जो मूल अर्थ है, उसके ओरिजिन है, उसके धातु है, वह नेटिव से आया है। राष्ट्र की जो है वो राजन और त्र इससे आया है। इसलिए राष्ट्र और नेशन ये समान नहीं है। बट बिकॉज ऑफ our convenience, because of the limitations of languages and terms, we have to now understand them as equal terms, although they have cultural and civilizational dimensions and connotations. इसलिए हम संस्कृति कहते वही कल्चर है क्या? नहीं है। परंतु आज के विश्व में हमको इस प्रकार कहना पड़ता है। और भारत के प्राचीन वाङ्मय में संस्कार संस्करण शब्द है, संस्कृति अलग से एक शब्द नहीं है। तो संस्कृति के लिए भी, सभ्यता के लिए भी अपने यहां धर्म यह शब्द ही हमेशा प्रयोग होता रहा है, क्योंकि धर्म के शब्द के जो आयाम हैं वो अनेकों हैं, असंख्य हैं। धर्म कर्तव्य भी है, धर्म लक्षण भी है, इट्स ए ड्यूटी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक। धर्म कल्चर भी है, धर्म लॉ भी है। तो इसलिए धर्म के इस व्यापक अर्थ व्याप्ति में संस्कृति भी आती रही है। परंतु आज हम एक विश्व के वर्तमान संदर्भ में हम भाषांतर के जो आवश्यकता मजबूरी है, उसमें कल्चर को संस्कृति, नेशन को राष्ट्र, ऐसे हम मान रहे हैं। तो मैं भी आज इसी अर्थ से जो वर्तमान में प्रयोग होते हैं उसी दृष्टि से कुछ विचार रखूंगा। इसलिए मैंने पहले ही इस स्पष्टता को आपके सम्मुख प्रस्तुत मैंने किया। कल्चर के बारे में महर्षि अरबिंदो ने जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में बहुत गहराई से, व्यापकता से उन्होंने जो विचार रखा है, उसको श्री दिगंतोदा ने पूरे अपने 1 वर्ष के इस कार्यक्रम में देश के सम्मुख, जनता के सम्मुख विस्तार से विभिन्न आयामों से रखने वाले ही हैं। इस बीच बीच में समाज के कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार के विशेष व्याख्यान के लिए, लेक्चर के लिए बुलाना, यह भी इस कार्यक्रम की एक विशेषता रही है। नेशन एंड नेशनलिज्म और कल्चर, इसके क्या संबंध है? संस्कृति मनुष्य से संबंधित है, समाज के जीवन में आचरण व्यवहार से संबंधित विषय है। वह राष्ट्र और राष्ट्रीयता से भी संबंधित है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे तो ध्यान में आएगा। यह जो आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना है, अवधारणा है, यह फ्रेंच रेवोल्यूशन के पश्चात जो आज नेशन कहते हैं,
वह विश्व के चर्चा में आया है। 1798 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यह विशेष रूप से the nation state came into existence, and before that, right from 1648, वेस्टफेलिया जो एक यूरोसेंट्रिक स्टेट सेंट्रिक कल्पना आई, वह वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट वह पश्चिम में, खास करके यूरोप में नेशन के निर्माण के संदर्भ में एक प्रमुख डायमेंशन के नाते, एस्पेक्ट के नाते वह सामने आया। मैं इसलिए कह रहा हूं, पश्चिम के राष्ट्र की कल्पना और भारत में जो राष्ट्र की कल्पना है, इसमें जमीन आसमान के अंतर रहा है। होली रोमन एम्पायर से जब पीपल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, हम अलग हैं, हम अलग नेशन हैं, इसलिए क्योंकि हमारी भाषा अलग है, इसलिए हम एक स्वतंत्र राज्य निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे करने के कारण वेस्टफेलिया के एक ट्रीटी, एक समझौता 1648 में आई। उसके पश्चात धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत फ्रांस और उसके पश्चात इंग्लैंड, ऐसे यूरोप में विभिन्न राष्ट्र राज्यों के निर्माण हुए, नेशन स्टेट्स। सो दोज नेशन स्टेट्स आर टुडे कॉल्ड नेशंस। इसलिए पश्चिम में जो राष्ट्रों के निर्माण हुए हैं, वह ट्रीटी के कारण, संघर्ष के कारण, भाषा के आधार पर, कभी कभी पांथिक कारण से, कभी राजनीतिक कारण से ये हुए हैं। जियोपॉलिटिकल, टेरिटोरियल, थियोक्रेटिक, लिंग्विस्टिक, ट्रीटी बेस्ड, ऐसे राष्ट्रों के निर्माण हुए हैं। जब पोप महाशय ने अपने ईसाई धर्म के प्रसार और वहां के लोगों के व्यापार के विस्तार के लिए लोगों को समुद्री जहाज से विश्व के पूर्व और पश्चिम की दिशा में भेजे रोम से, तो स्पेन लोग, पोर्चुगल लोग विरुद्ध दिशा में गए, पश्चिम और पूर्व में। ऐसे ही अफ्रीका में भी गए। अफ्रीका के मानचित्र को सामने रखकर, लाइन खींचकर, रेखाएं खींचकर अफ्रीका के राज्यों के निर्माण हुए, जिसको राष्ट्र कहते हैं। आज अफ्रीका के जो राष्ट्र बने हैं, उसके आधार क्या रहा? पोप के सामने जो लोग वहां के, उनके शिष्य लोग, उनके अनुयायी लोग, ईसाई लोग, व्यापार और ईसाई मत के विस्तार के लिए उन देशों में पहुंचने के पश्चात आपस में न लड़े, they wanted to have their lands separated so that mutual conflicts will not be there. In order to avoid the quarrels, Pope drew the line on the map of Africa and nations came into existence. तो ऐसे पश्चिम में या अफ्रीका में देशों के निर्माण, राष्ट्रों के निर्माण इस प्रकार हुए हैं। तो इसके लिए आधार वो हो गए। क्या इस आधुनिक परिकल्पना के आधार पर ही भारत में राष्ट्र के निर्माण हुए क्या? ऐसे नहीं है। राष्ट्र की परिकल्पना अत्यंत प्राचीन है अपने देश में, भारत में। उसके आधार क्या रहा है? राष्ट्र के आधार है यहां लोक कल्याण के लिए इच्छा और आकांक्षा रखकर जब ऋषियों ने तपस्या की और उनके तेज और ओजयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति उस कारण से हुई, और इसीलिए राष्ट्र जो है यह किसी भी जन समुदाय के तेज, बल
इसके आधार पर ज्ञान के कारण दीक्षा लेकर किए हुए ऋषियों के विश्व कल्याण की आकांक्षा से उत्पत्ति हुई एक घटक है, इकाई है, एंटिटी है। भद्र विच्यंत ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। यह वेद की घोषणा। तो इस वेद घोष में यही कहा गया है राष्ट्र कैसे बना। तो इसके आधार क्या है? तो नेशनलिज्म के बारे में हम यदि देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने भी राष्ट्र के बारे में व्याख्या दी है, डेफिनेशन दिए हैं। और पश्चिम के बहुत सारे यूरोप के, अमेरिका के विद्वान लोगों ने, जे स्मिथ, रॉबर्ट ग्रेस, गिलबर्ट, गिबन्स, गार्नर, जीडी बहमान, जिमेन फिशर, साइंडर, डोंगेल, कोहेर, स्नाइडर, तरह तरह के उन्होंने राष्ट्र के बारे में, नेशन के बारे में अपने अपने व्याख्या दिए हैं। उनमें से एकाध वाक्य कॉमन मिलते हैं, बाकी सब अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देयर बैकग्राउंड, देयर एनवायरमेंट्स, देयर लैंग्वेजेस, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर कल्चरल heritage, they were all different. That's why they have not arrived at a common definition. However, certain things are common. तो ये भी हमको देखना चाहिए। मैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में कह रहा था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? जैसे मैंने अभी कहा, फ्रांस के रेवोल्यूशन के पश्चात पश्चिम के जगत में राष्ट्र राज्यों के निर्माण हुए, नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, and those nation states have become members of League of Nations and later on the United Nations organization. That is why these the member states of the United Nations organizations, they are called nations, whereas they are nation states. क्योंकि आज भी आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे नेशन के बारे में हमारे विद्यार्थी किस प्रकार के एक व्याख्या को, डेफिनेशन को देखते हैं, कैसे परिभाषित किया है। नेशन इज दैट विच इज हैविंग ए लैंड, ए गवर्नमेंट, ए सॉवरेनिटी, ए सरकार, शासन, संप्रभुता, करेंसी। तो यही कहा गया है। तो इसलिए एक जियोपॉलिटिकल बाउंड्री में रहने वाले लोग अपने सरकार की स्थापना करते हुए उसको संप्रभुता दिए हैं, एक संविधान बनाए हैं, एक करेंसी उनकी है, कभी कभी एक आर्मी है, सेना है। इस प्रकार एक जियोपॉलिटिकल नेशन के बारे में चर्चा है, बट इट इज नेशन स्टेट। तो इसलिए टेरिटोरियल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल नेशनलिज्म और जियोपॉलिटिकल नेशनलिज्म, and sometimes it is theocratic nationalism, Islamic state। उसको इस्लामिक नेशन तो कहते हैं, बट वो थियोक्रेटिक है। क्यों थियोक्रेटिक है? वहां पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स आर नंबर 1 सिटीजन्स एंड अदर्स आर सेकेंडरी सिटीजन्स, दे आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स। तो इसलिए डेफिनेशन ऑफ ए नेशन जो है, इसके बारे में यदि हम विचार करें तो विभिन्न प्रकार से लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो एंटोनी स्मिथ ने, जो अभी तक 2016 में जिनके स्वर्गवास हुआ, उन्होंने कहा है नेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में उनका कहना है, an ideological movement. Nationalism is an ideological movement for attaining and maintaining autonomy, unity, and identity on behalf of a population deemed by some of its members to constitute an actual or potential nation. And he says, a named population sharing a historic territory. Nation के बारे में उनका definition है, a named population
sharing a historic territory, common myths and historical memories, a mass public culture. I underline it, a mass public culture, a common economy, and common legal rights and duties for its members. इसमें हम देखते हैं नेशन के बारे में जो एस्पेक्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो भी है। नेशन स्टेट के कंपोनेंट्स भी इसमें है, क्योंकि एंथोनी स्मिथ पश्चिम के हैं। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद के विषय जो वहां के डेवलपमेंट्स है उससे वो प्रभावित रहे, वहां उन्होंने देखा, उसके आधार पर इस प्रकार के विचार उन्होंने रखा। वही अर्नेस्ट रेनॉन करके एक फ्रेंच स्कॉलर ने राष्ट्र के बारे में क्या कहा? अर्नेस्ट रेनॉन डिफाइंस ए नेशन as an entity based on acts of the free will of individuals forming a collective identity. एक सामूहिक पहचान उनके हैं। ऐसे स्वतंत्र बुद्धि के, मनोभाव के, प्रज्ञा के, चेतना के इंडिविजुअल्स, वो दे कम टुगेदर टू फॉर्म ए नेशन। एंड ही फर्दर सेज, अर्नेस्ट रेनॉन्स कोटेशन, A nation is a soul, a spiritual principle. ये भारत के विचार से अत्यंत समीप के विचार पश्चिम के एक विद्वान का है। I repeat, a nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which in truth are but one, constitute this soul or spiritual principle. Soul and spiritual principle, though they appear to be two different things, they are one and the same. यह रेनॉन के कहना है। तो अपने देश में भी राष्ट्र के बारे में विचार किया गया है। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ के ऋषियों ने तपस्या करके इस देश के अंदर राष्ट्र के स्वभाव के बारे में विचार किया। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी गोलवलकर जी ने राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र के आधार क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट मेक ए नेशन ए नेशन, राष्ट्रीयता कैसे होती है, उसके बारे में उनका कहना है, जो भारतीय दृष्टि और यहाँ के दर्शन के आधार पर है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए नेशन? एक ऐसा जनसमूह वह जिसके समान इतिहास, समान परंपरा, समान शत्रुमित्र भावना, उसके भविष्य की आकांक्षा समान, उसके महापुरुषों की मालिका समान, ऐसे जनसमूह जिस भूमि पर पुत्र रूपी समाज के नाते रहता है वह राष्ट्र है। यानी भूमि को वो मानते हैं ये मेरी मां है। ऐसे पुत्र रूपी समाज, the land and the people, the relation is of mother and children. और वहां के जो इतिहास है, परंपरा है, शत्रुमित्र भावना है, भविष्य की आकांक्षा है और महापुरुषों की मालिका है, जीवन के व्यवहार के रीति रिवाज है, ये समान रूप से है। ऐसे जनसमूह को राष्ट्र कहते हैं। इसलिए राष्ट्र यह केवल एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, यह जनसमूह है जिसके जीवन मूल्य है, जिसी को संस्कृति कहते हैं। इस वैल्यू सिस्टम को हमारे यहाँ संस्कृति कहा गया है। तो इसलिए एक देश दूसरे देश पर राज करते समय भी वहां के राष्ट्र बदलता नहीं है। भारत में 100 से अधिक वर्ष अंग्रेजों के राज रहा। We called it British Raj, but it never became British Rashtra. This British Raj remained Hindu Rashtra all the time, or Bharatiya Rashtra if you want to say. So Raj was British Raj, but Rashtra was Bharat Rashtra. तो इसलिए ये क्यों ऐसे होता है? Because political rule or somebody's occupation will not change a nation from being one nation to the another. इसलिए माता और
और पुत्र के समान जो भूमि के साथ संबंध है, इसलिए माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये जो अथर्ववेद के विचार है। माता पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है अपने पुत्रों के, अपने संतति के, और उसके रिटर्न में संतति संतान जो है, उनके पुत्र जो है, Please be central to the frame. You are not in the frame. इसलिए जो माता के इस वात्सल्य के कारण पुत्र उसके रक्षा के लिए सब प्रकार की तैयारी रखते हैं। तो यही माता और पुत्र के संबंध है। राष्ट्र और समाज के संबंध या जनसमूह के संबंध यही है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो एक समान आदर्श, आइडियल्स, समान आकांक्षा, एस्पिरेशंस, समान इतिहास बोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, समान स्मृतियां, कॉमन मेमोरीज, समान सामाजिक रीति रिवाज यानी नॉर्म्स एंड आइडियल्स, इस समूह को संस्कृति कहते हैं। एंड दैट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ ए नेशन। व्हाट इज रियली ए कल्चर इज? कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सोल ऑफ ए नेशन। राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति है। कल्चर इज नॉट जस्ट some fine arts activities, music, dance, literature, paintings, ये सब कल्चर तो है ही, लेकिन दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ द कल्चर। तो इसलिए भारत ने इन सारे बातों को, संगीत, नृत्य, कला, साहित्य, इन सबको एक अभिव्यक्ति के रूप में लाया। किसकी अभिव्यक्ति? वह इस देश की आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति। बिकॉज द स्पिरिचुअलिटी इज द सोल ऑफ भारत एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दैट सोल, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, इज कल्चर। तो इसलिए भारत के जो आत्मा है वो अध्यात्म होने के कारण, जैसे अभी श्री अरबिंदो को कोट करते समय दिगंतदा ने इसका उल्लेख किया, उस नेशनल कॉन्शियसनेस जो सर्वत्र मौजूद है, उपस्थित है, देशात्मबोध है, वह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सर्व दिशा में, सर्वकाल में है। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के लिए पूरे देश से प्रत्येक कोने में लोग क्यों खड़े हो गए, क्यों आवाज उठाए? क्योंकि राममय देश होने के कारण भारत के प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक स्थान पर राम के नाम से लोग अपने बच्चों को नाम रखते हैं। लक्ष्मण के नाम पे लेकर लक्ष्मण के नाम रखते हैं। रामायण से यह देश जुड़ा हुआ है। राम क्यों? सब हजारों राजा रहे, राम के बारे में क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए, स्थापित करने के लिए परिश्रम किए। इसलिए इस भारत की चिट्ठी को, आध्यात्म को एक्सप्रेस करने वाले लोगों को सर्वत्र स्वीकार्यता है, उसके अनुयायी बने। श्री विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, कोई भी भारत के इस आत्मा के पहचान उन्होंने किया, वह अध्यात्म है, ऐसे उन्होंने माना। अपने साहित्य में, अपने वाणी में, अपने प्रवचन में, अपने प्रबोधन में उन्होंने इसी विषय को बार बार कहा। तो इसलिए भारत की भूमि की आराधना होती है। यह केवल एक मिट्टी नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर एक पवित्रता है, एक सेक्रेडनेस है। कुछ समय पहले डायना एक करके एक महिला के, एक लेखिका के पुस्तक प्रकाशित हुआ कुछ वर्ष पूर्व। उस पुस्तक के जो शीर्षक है वह है सेक्रेड जियोग्राफी। भारत के
बारे में उन्होंने ये कहा, सेक्रेट जियोग्राफी, क्योंकि भारत के कंकर को शंकर मानते हैं यहाँ के लोग, भारत के मिट्टी के पूजा करते हैं, यहाँ के जंगल के पेड़ पौधे के, यहाँ के नदी के पहाड़ की अर्चना आराधना होती है, पूजा होती है, उसमें ईश्वर विद्यमान है, ऐसे भारत के लोग मानते हैं, हजारों वर्षों से मान रहे हैं, यही उसने लिखा है। इसलिए इस भूमि को देवभूमि, पुण्य भूमि, ये सारे नामों से कहते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज अ सेक्रेट जियोग्राफी। No other country in the world has ever felt that their geography is a sacred geography or a holy geography. तो इसलिए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, चतुर्धाम, ये सारे चीजों के कारण यह वेद काल से, रामायण काल से यह देवभूमि है। यहाँ के साथ लोग जुड़े हैं। उस समय कोई संविधान नहीं था, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज नो वन रूलर, देयर वाज नो वन गवर्नमेंट, देयर वाज नो वन पॉलिटिकल अथॉरिटी और सॉवरेनिटी। फिर भी भारत के लोगों ने इसको एक राष्ट्र के रूप में माना। किस आधार पर? यहाँ के सप्त मोक्षदायिनी पुरों के बारे में, सप्तार्णवा सप्तकुलाचलश्च, ये प्रातस्मरण में हम कहते हैं। किस आधार पर यह विचार हुआ? किसने देखा? तो ये सारी चीजों के अनुभव से, अवलोकन से, प्रयोग से करते हुए भारत के लोगों ने इस संस्कृति और सभ्यता को अपने राष्ट्र के आधार माना। इसलिए कालिदास लिखता है, अच्युत्तर देवतात्मा हिमालयो नगाधिराज। हिमालय पर्वत को केवल एक बर्फ के पहाड़ नहीं माना हमने उसको देवतात्मा हिमालय। यहाँ के समुद्र राज है, यहाँ के पर्वत राज है, यहाँ के नदियां मां हैं। इसलिए सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविता में यही विचार रखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने वंदे मातरम में इसी विषय को रखा। नरसिंह मेहता हो, शंकर देव हो, भारत के बारे में उन्होंने जो वर्णन किया, उद्गार किया, उन सब में यही विचार प्रकटित हुए। तो इसलिए उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति, इसको हम सुनते हैं। हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर के जो भूभाग है, ये कैसे एक किसने माना, कैसे आ गया? क्योंकि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी तो एक नहीं थी, एक गवर्नमेंट नहीं था। लेकिन भारत में सदा सर्वदा लोगों ने यह माना, उत्तर में हिमालय की सीमा है, दक्षिण में समुद्र की सीमा है। भाषा एक नहीं थी। इतनी विविधता होने पर भी शंकराचार्य को कालड़ी से निकलकर देश के चारों कोने में जाने की इच्छा क्यों हुई? गुरु नानक को क्यों ऐसी इच्छा हुई? विवेकानंद को कलकत्ता से निकलकर कन्याकुमारी तक पहुंचने की प्रेरणा कहां से मिली? तो इसलिए यह कभी न कभी तो भारतवर्ष के यह मानचित्र, यह एक राष्ट्र, यह भावना, यह अंडरस्टैंडिंग, ये हमेशा रही है। इसलिए माता भूमि पुत्रोहम के जो कल्पना है, वही आधुनिक काल में वंदे मातरम हुआ। भूमि मां है, मैं पुत्र हूं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के कविता में वो वंदे मातरम हुआ। भारतवर्ष के मैं संतान, भारतम तद भारतम वर्षम यत्र भारतीय संतति ही, भारत के हम संतान हैं। उसी के आधुनिक काल में नारे क्या लगे? भारत माता की जय। कल्पना, अवधारणा वही है, शायद अभिव्यक्ति अलग अलग हुई होगी। तो इसलिए यह सांस्कृतिक धरोहर जो है वह समय हमेशा ऐसे चलते आई। इसलिए ज्ञान को यहाँ सरस्वती कहा, धन को लक्ष्मी कहा, शक्ति को मां कहा। त्वमि दुर्गा दश प्राणधारिणी कमला कमल बल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी, यह वंदे मातरम में आया। तो इसलिए पूरा देश के लोग इस भावना से ओतप्रोत होकर
खड़े हो गए, वही अपने लोकगीत में, लोक कथाओं में, कहावतों में यही आए। हमारे हार्वेस्ट है, हमारे विवाह के रिवाजें हैं, ये सारी बातें पूरे देश में क्यों एक है? आप देखिए, कोई कहावत है, कोई प्रॉवर्ब है, कोई रीति रिवाज है, वो सब पूरे देश में समान रूप से क्यों है? सुबह उठते समय बाएं तरफ से नहीं उठना चाहिए, दाहिने तरफ से उठना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में आ जाइए, लोग यही कहेंगे। गाड़ी चलाते समय सामने से बिल्ली बाएं से दाहिने गई कि दाहिने से बाएं गई, इसके बारे में समान रूप से कहा है? कौन सा संविधान में लिखा है? लेकिन लोगों के मन में क्यों आया? कोई दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, समझो दिगंतदा और मैं डॉक्टर निरंजन राय जी के बारे में बात कर रहे हैं। निरंजन राय जी उपस्थित नहीं है, तो हम बात करते समय निरंजन राय जी आ गए कमरे में, हम क्या कहेंगे निरंजन राय जी को? निरंजन राय जी को 100 वर्ष आयु है, दीर्घायु है, यही तो कहेंगे। वो असम में भी कहेंगे, तमिलनाडु में भी कहेंगे, पंजाब में भी यही है, गुजरात में भी यही है। वही अंग्रेजी में भाषा में क्या है? थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर ही इज। तो वहां डेविल हो जाता है, यहाँ 100 वर्ष जिंदा रहता है। चंद्रमा जो है, भारत के सभी भाषा में चंद मामा है, बिल्ली सभी भाषा में मौसी है, गाय, नदी, प्रकृति, ये सब भारत की सभी भाषाओं में माताएं हैं। पूरे देश में हमारे यहाँ गोत्र के कल्पना है, श्राद्ध की कल्पना है, शौच अशौच की कल्पना है, वो सब समान है। These are the essential components who have made this people into a nation, who have woven this society into a nation. तो इसलिए भारत के इस सारे विविधता होने पर भी हम एक राष्ट्र इसलिए हैं। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात 560 से अधिक रियासतें होने पर भी एक दो को छोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसको एक राष्ट्र के नाते आधुनिक उसमें भारत को एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाने में कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि दो देवर 560 डिफरेंट provincialities and states, they came together as one nation because they were already a nation. इसका कारण यही है, हम यहाँ एक कल्चर को यहाँ अनुभव करते हैं। तो इसलिए दो तीन बातों के संदर्भ में थोड़ा उदाहरण देकर मैं इसको स्पष्ट कराना चाहता हूं। अण्णादुरै जी दक्षिण में तमिलनाडु में द्राविड़ कड़गम मूवमेंट के एक नेता रहे और डीएमके के वो चीफ मिनिस्टर भी थे कर्नाटक तमिलनाडु में। कुछ वर्ष वो राज्यसभा में मेंबर थे। 1962 में चाइना के आक्रमण हुआ, उस समय वो राज्यसभा में थे। उन्होंने राज्यसभा में एक अद्भुत भाषण दिया। उनके भाषण में उन्होंने कहा किसी भी हालत में चीन को हमें हराना चाहिए, पूरा देश एक साथ है, हम इसको सहन नहीं करते। तो उनके भाषण सुनने के बाद बाहर सेंट्रल हॉल में कुछ मित्रों ने पूछा, अण्णादुरै जी आप तो द्राविड़ कड़गम के नेता हैं, आप तो उत्तर भारत दक्षिण भारत अलग मानते हो, आप भाषा के दृष्टि से हिंदी और तमिल के बीच में आपका विरोध है, तो ये कैसे हो गया? आप हिमालय के ऊपर चीन के आक्रमण है, आपको इतने चिंतित हो गए? अण्णादुरै ने क्या उत्तर दिया? अण्णादुरै जी ने कहा पॉलिटिक्स इज डिफरेंट बट वी बिलोंग टू वन कल्चर बिकॉज आवर शिवा अबोर्ड इज इन हिमालयास। क्योंकि तमिलनाडु में शैव लोग हैं, वैष्णव लोग भी हैं, तो उनके अबोर्ड कौन से हैं? वो तो हिमालय ही हैं। तो कल्चर आ गया।
सोशलिस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट थिंकर थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वो हर वर्ष रामायण मेला ऑर्गेनाइज करते थे चित्रकूट में। रामायण मेला क्यों ऑर्गेनाइज करते थे सोशलिस्ट लीडर? उन्होंने कहा ये राम की संस्कृति है इस देश में, राम के बिना राष्ट्र नहीं है। ये राम मनोहर लोहिया का उद्गार है। And he also has written a wonderful article by the title Ramakrishna Shiva. Ramakrishna Shiva. And in that article, in that beautiful essay, which is a literary piece, Dr. Ram Manohar Lohia, the famous socialist, he explains how Prabhu Ramachandra has united this Bharat from north to south, because राम जी ने सरयू नदी के तट से रामेश्वरम तक का उन्होंने पैदल यात्रा की, इसलिए he unites culturally this country from north to south. Krishna has united this country from west to east, द्वारका से मणिपुर तक. Our Shiva is existing all over Bharat in this land. These are the words used by socialist thinker and leader Dr. Ram Manohar Lohia in his famous article Shiva Ramakrishna. भारत की संस्कृति और सभ्यता के लोकोत्तर उदाहरण राम और कृष्ण हैं. एक सोशलिस्ट थिंकर कहते हैं राम और कृष्ण की इस सांस्कृतिक धरोहर के बिना भारत राष्ट्र नहीं बन सकता. मित्रों, राष्ट्रीयता और नागरिकता ये अलग अलग है. सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी, दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. बट इन द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, many a time nationality and citizenship are generally taken as one. Here comes a question before the political scientists to discuss and comprehend. Citizenship is a politico-legal status of a person. Citizenship कैसे दिया जाता है? एक politico-legal status है. Nationality is a socio-cultural और socio-political concept. इसलिए आप कि राष्ट्रीयता जो है वह उस मिट्टी से, उस संस्कृति से, उस सभ्यता से, वहां के धरोहर से, वहां के इतिहास से आपके जुड़ा है, वह राष्ट्रीयता है. आप वहां के संविधान के तहत एक मतदाता बनने के लिए आपको जीवन के भौतिक चीजों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक सॉवरेनिटी को आप स्वीकार करते हैं, देन यू बिकम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और दैट नेशन स्टेट. इसलिए आप सिटीजन बन सकते हैं, राष्ट्रीयता नहीं बदलती. तो इसलिए राष्ट्रीयता और सिटीजन के बारे में इस डिबेट को विचार करना चाहिए. मैंने आपको राष्ट्रीयता के संदर्भ में कैसे यहाँ कल्चर के संदर्भ में है इसे मैंने कहा. देयर इज अ केस, फेमस सुप्रीम कोर्ट केस, डॉक्टर प्रदीप जैन केस. जस्टिस पी.एन. भगवती, in his judgment, he has observed, it is an interesting quote, it is an interesting fact of history that India was forged into a nation neither on account of a common language nor on account of the continued existence of a single political regime over its territories, but on account of a common culture evolved over the centuries. It is cultural unity, something more fundamental and enduring than any other bond which may unite the people of a country together. जस्टिस भगवती स्पष्ट रूप में कहते हैं कोई भाषा के कारण, पॉलिटिकल प्रशासन के कारण, सॉवरेनिटी के कारण कोई राष्ट्र नहीं बनता. कॉमन कल्चर इवॉल्व ओवर सेंचुरीज. इसलिए मेरे जो प्रपोजिशन आज के लेक्चर में था, कल्चर इज द फाउंडेशनल एस्पेक्ट फॉर ए नेशन. अब मैं एक पश्चिम के
स्कॉलर के विचार रखता हूं आपके सम्मुख। सर विंसेंट स्मिथ, ए हिस्टोरियन, उन्होंने कहा है, आई कोट, इंडिया, उन्होंने इंडिया के बारे में कहा है, इंडिया beyond all doubts possesses a deep underlying fundamental unity far more profound than which is achieved by either geographical isolation or political suzerainty. तो भारत के एक अंतर्निहित एकात्मता है। वह एकात्मता वह भौगोलिक एकता के कारण नहीं है अथवा राजनीतिक संप्रभुता के कारण नहीं है। This unity transcends all the various diversities of caste, creed, race, color, language, and custom. So this unity transcends all these diversities. On what basis? And that one single basis is there is a culture which is underlying this unity, this integrity, this expression of nationhood. तो इसलिए भारत की इस राष्ट्रीयता के आधार, जैसे मैंने कहा, ये संस्कृति के आधार पर विश्व में भी कई जगह पर इस प्रकार के अनुभव हम देखते हैं, अवलोकन करने से ध्यान में आता है। पिछले शताब्दी में लेट 80s में 1989 उन दिनों में दुनिया में दो डेवलपमेंट हुए। एक यूएसएस और सोवियत रूस का विघटन हो गया, सोवियत रूस समाप्त हुआ। किस आधार पर? सोवियत रूस बना था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ कंपल्शंस। भिन्न भिन्न राष्ट्रों को जोड़कर एक यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर बना। नेचुरल नहीं थे, मजबूरी से, दबाव से, पॉलिटिकल मैकेनिज्म से यूएसएसआर को बनाकर एक राष्ट्र निर्माण करने के प्रयत्न हुआ, बट दैट कुड नॉट सक्सीड इवन फॉर 100 years। तो 1989 में सोवियत रूस का विघटन हो गया, डिसमेंबरमेंट हो गया। पहले बाल्टिक स्टेट्स अलग हो गए, बाद में धीरे धीरे अन्य उज्बेकिस्तान बाकी अलग हो गए। अब रशिया अलग से है। यूएसएसआर बदल होने के कारण क्या है? यह अलग होने के कारण उनके सांस्कृतिक विभिन्नता है, उनके नेशनहुड अलग से अंदर था। यूएसएसआर वाज नॉट ए नेशन, बट इट वाज ए मल्टीनेशनल स्टेट। इट वाज वन पॉलिटिकल स्टेट विथ मल्टीपल नेशंस। एक का दूसरे उदाहरण उसी समय के देखते हैं। जर्मनी 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उसका विभाजन हुआ। बर्लिन के दीवार खड़े हो गए बर्लिन शहर में, पूर्व और पश्चिम जर्मनी हो गए, एक डेमोक्रेटिक जर्मनी, एक कम्युनिस्ट जर्मनी हो गई। हम सब जानते हैं 1989 में दोनों जर्मनी के बीच के बर्लिन दीवार को तोड़कर वहां के लोगों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, गले लगाए और एक राष्ट्र। जर्मनी दो जब बने थे 1944 में, they were not two nations, they were two nation states, two political entities, but culturally they were one. East Germany and West Germany, they suffered this separation, although they were belonging to one culture. And turn of events resulted in binding them together again. तो जर्मनी का एक राष्ट्र बना। टाइम्स मैगजीन में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल के लिखने वाले जर्मनी के एक एम्बेसडर थे उस समय के। उन्होंने लिखा, देयर हैव बीन टू टाइप्स ऑफ explosions, upward explosion and downward explosion. One explosion is bringing two political states together
and making it one nation, which was a nation earlier, because of political developments, got divided into two states, as it happened in Germany. Whereas the downward explosion was many nations were brought together into one nation, and turn of events resulted in re-establishing those nations separately, dismembering that political unity which was artificial. इसलिए मित्रों, संस्कृति राष्ट्र के पहचान और राष्ट्र के जो अनुभव है उसके आधार पर राष्ट्र बनते हैं। पॉलिटिकल मैकेनिज्म से, लैंग्वेज से, थियोक्रेसी से देश जो बनता है, राष्ट्र बनता है, वह स्थायी शाश्वत नहीं हो सकते। तो इसलिए इट इज दस historically established fact that a nation exists on basis of trinity of land with people having a common culture. एक भूमि, एक जन और एक सामान्य संस्कृति सबके। इसके कारण एक भूमि, उस भूमि के पुत्र के संतान के नाते सोचने वाले समाज और उस समाज की जीवन मूल्यों के आधारित संस्कृति के कारण देश बनता है। इसलिए द फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ एनी नेशन एंड नेशनलिज्म इज अनडाउटेडली द कल्चर एंड कल्चर अलोन। तो इसलिए द नेशन एंड अनअडल्टेड लव फॉर इट्स और बेसिक क्रीड, वी लिव एंड विल डाई फॉर दैट नेशनलिज्म। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, आई कोट, द एंटायर एडिफिस ऑफ आवर थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, economics, sociology, and in any other departments of life is founded on our culture. इसलिए हमारे राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, औद्योगिक, विश्व के साथ संबंध, ये सारी बातें अपने संस्कृति के आधार पर ही विकसित होते हैं। इसी को उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा था। We have already noted that our cultural unity is the civilizational foundation of our national identity as well as और एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ। इसलिए मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्र के जो आधारशिला है वह भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इस भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को हर पीढ़ी में सामान्य लोग, विद्वान लोग, समाज के नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व, साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार और कोई, सबने इसको किसी न किसी रूप से मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, समृद्ध करने के लिए प्रयत्न किया है। हर युग में वो क्षीण हुआ होगा, कभी मजबूत हुआ होगा, परंतु इस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धारा है वह सदैव प्रवाहित होता रहा। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में आज जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात होती है, सैमुअल हंटिंगटन ने पुस्तक लिखे हैं। क्यों? तो इसलिए क्लास पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन से ज्यादा सिविलाइजेशन के कारण हो सकता है। यह विचार आज राजनीतिक विद्वान लोगों ने, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र जानने वाले लोगों ने इस निष्कर्ष पर धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन is its culture, and on the basis of that culture, a civilization that has developed, that has evolved. इसलिए इस बात के बारे में विचार आज दुनिया में हो रहा है, ऐसे मैं मानता हूं। तो इसलिए संस्कृति के इस महत्व को, अपने जीवन के आधार को, अपने राष्ट्र के आधारशिला को हम समृद्ध बनाएं, इसको आगे बढ़ाएं और संस्कृति के विभिन्न आयामों को समझे। और संस्कृति का अर्थ केवल ये नहीं होता है कुछ अभिव्यक्ति के रूप में जो होने वाले पूजा पाठ या कला, संगीत, नृत्य, इतना ही नहीं है। उसके पीछे के जो तत्व है, द सोल ऑफ ए नेशन, वह अध्यात्म, वह भारत के वैश्विकता, वह भारत के जीवन दर्शन, वह भारत के ये जो चार बातों के बारे में मैं कहूंगा, वह उसके चैतन्य जो ऊर्जा है, जिसको यहाँ शक्ति कहते हैं, वह धर्म जो यहाँ के आचरण है, जो गुड ह्यूमन बिहेवियर है,
एक कॉस्मिक ऑर्डर है, ग्लोबल एथिक है। और तीसरा, कुटुंब के मूल्य, फैमिली, वह एक व्यक्ति कुटुंब से लेकर विश्व कुटुंब तक विस्तारित होते हैं। और एक कॉन्सेंसस है, सहमति है, दूसरों के साथ हमारे सहयोग है, जिसको कोएग्जिस्टेंस के रूप में आज कहा जाता है। इन सारे विषय को, यह सहमति मनुष्य के बीच, मनुष्य समाज के साथ, मनुष्य प्रकृति के साथ, मनुष्य विश्व के साथ रहने के इन 4 पिलर्स पर, चैतन्य, धर्म, कुटुंब और कॉन्सेंसस यानी सहमति, इसके आधार पर यह संस्कृति के मंदिर खड़ा हुआ है। इस संस्कृति के आधार पर ही राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की अवधारणा विकसित हुई है। इसी को मजबूत रखने से ही राष्ट्र के नाते हमेशा प्रकाश देता रहेगा। विश्व के लिए शांति और सुख और समृद्धि लाने में वह एक योग्य, सशक्त, सक्षम उपकरण बनेगा। यही मेरा विश्वास है, यही भारत के दर्शन है, यही भारत की परंपरा और अनुभूति है। इतने ही कहकर मैं आज के इस विचार को यहाँ विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। Thank you. Aspects of our great movement. Sir, you have very rightly pointed out that the way the idea of nationhood developed in West is not like that of Bharat. Here we are united, not only because of the elements like population, territory, government and sovereignty, but also because of our spiritual bond. This is what binds us together for centuries. Our land represents eternal bond, which is a part of our culture. It also represents sacred geography, which united us for thousands of years. Thank you so much, sir, for your splendid deliberation. May I now request our respected Professor Gopalji Misro, Chairperson, Center for Studies in Human Development, Assam University, to share his thoughts on the occasion. Sir, please. ने बताया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने छोटे छोटे उदाहरणों से हमारे दिन प्रतिदिन का जो व्यवहार है, हम कैसे उसमें जो है हम अपनी संस्कृति का किस तरीके से पालन करते हैं, और वह देश के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, जैसे आपने बिल्ली मौसी का उदाहरण दिया, जैसे आपने बताया कि तमाम सारे महापुरुष एक ऐसी प्रेरणा रही जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गए और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। और धर्म की आपने बड़ी ही विशद व्याख्या किया कि धर्म का मतलब हम रिलीजन से जोड़ते हैं, जबकि वस्तुस्थिति है कि धर्म रिलीजन नहीं है। जह धारयति स धर्म, जिसको हम धारण करते हैं, जिसका हम अनुसरण करते हैं, आचरण में लेकर के आते हैं, और जिसके हिसाब से हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। दूसरी चीज, आपने राष्ट्रों के उत्पत्ति के बारे में बहुत ही एक अच्छा उदाहरण देकर के बताया कि पश्चिम के राष्ट्र जो भी बने हैं वो राजनीतिक कारणों से बने हैं, संघर्ष की वजह से बने हैं, और जो है क्या नाम है कि उनके अंदर जो है भाषा की विभिन्नताएं थी, उनकी वजह से बने हैं। जबकि हमारा जो राष्ट्र है वह संस्कृति के आधार पे बना है, हमारी सारी चीजों के आधार पे बना है। जो धर्म है, हमारे आचरण है, हमारे जो भी सारी चीजें हैं, उनके साथ हमको रहने के लिए जो हमारे नियम हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो सारी चीजों के साथ एक साथ जुड़ करके बने हुए हैं। आपने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में उनकी क्या सोच थी, किस तरीके की चीज थी। वो एक अपने आप पे बहुत ही अच्छा उदाहरण रहा। आपने जर्मनी का एक उदाहरण दिया और यूएसएसआर का उदाहरण दिया कि चूंकि वह एक स्टेट का संघ था, उनमें कहीं भी समानता नहीं थी, उनकी सारी सोच अलग थी, उनके धर्म अलग थे, उनके सारे विभिन्नताएं थी। इसलिए वो अंडर कंपल्सन तो वो बन गए थे, लेकिन समय के साथ साथ वो सारे जो चीजें 1980 में विखंडित हो गई। जबकि वहीं 1980 में जो जर्मनी के 2 भाग थे,
वो बर्लिन की दीवार गिरा करके वो एक राष्ट्र के रूप में बन गए। आपने जो है भारत माता की परिकल्पना को भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपने रखा, वो एक बहुत अच्छी चीज रही। आपने जो है क्या नाम है एकात्म दर्शन और के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बात किया, और साथ ही आपने जो है पंडित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो है रामायण मेला, सारी चीजों के समाजवादी होते हुए भी राम के चरित्र से, राम की परिकल्पना से, अगर राम राज्य की हम बात करते हैं तो वहां बिना राम के वो सारी चीजें नहीं हो सकती। आपने इनके सारी चीजों के बारे में बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, बहुत ही आसान तरीके से आपने इन सारी चीजों को विवेचना को रखा, और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपके इस प्रवचन से। और दिगंता दा का तो जितना भी सुनिए वो कम है, वो तो हमेशा हम लोगों को अनुप्राणित करते रहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करके अपना कर्तव्य नहीं पूरा करना चाहता हूं, बल्कि मैं हृदय से आपका आभारी हूं कि अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद आप इस मानव विकास अध्ययन केंद्र के लिए, असम विश्वविद्यालय के लिए, बराक उपत्यका के लोगों के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपने अनुभवों से, अपने विद्वत्ता से हम सभी लोगों को लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. And with that, we have actually come to an end of this program. And now it's time for formal vote of thanks. And to start this, I first, on behalf of Center for Studies in Human Development, Assam University, convey my sincere gratitude and thanks to our respected Sri Dattatreya Hojwaleji for accepting our invitation and delivering a special lecture on the foundational aspect of our nation and nationalism. Thank you so much, sir, for sparing your precious time with us. Thank you. I also convey my sincere thanks to our respected Sri Diganto Vishwa Sharma ji for extending all his support in organizing this year-long program. Thank you so much, sir. It is your effort that has made this program successful. I would also like to thank our Honorable Vice Chancellor, sir, for extending all cooperation in organizing this event. I also take this opportunity to extend my thanks to all our guest speakers like Sri Mukul Kanitkar ji, Sri Sampadananda Mishra ji, Kumari Nivedita Bhaide ji, Swami Sumanasananda ji, and Sri Prafullo Katkar ji, who spared their valuable time since inception of this program. It is because of their sincere contribution that has actually enriched all of us and made this program a successful one. Our next two special lectures will be held on 21st August by Dr. Anirvan Ganguly, and another guest lecture will be held on 1st September by Dr. Narendra Joshi ji. To conclude the program, I would also like to thank all the registered participants and all the invited guests and all those guests who joined through YouTube channel, through Facebook Live, and it is their participation which has actually made this program a success. With this, may I now invite Srimati Katamrita Bhattacharya from Vivekananda Kendra to chant Shanti Mantra, and with this, we will conclude the program. Madam, please. Namaskar to all. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.